حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ناظرین کرام، دل کی مختلف بیماریوں سے متعلق معلوماتی ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ہارٹ اٹیک پر بات کریں گے۔ WHO کی تحقیق کے مطابق پاکستان میں اور ایشیا میں سب سے زیادہ اموات وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا عام طور پر پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچانک ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں، وہ تو کل ہمارے پاس بیٹھا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اٹھ کے گیا ہے، اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہی ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس قدر اچانک آنے والی بیماری جو موت کا پیغام لے کر آتی ہے، اور سب سے زیادہ اموات جس بیماری سے ہو رہی ہیں، ہمیں اسے کبھی بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک کی جو علامات ہیں، یہ 1 مہینہ 2 مہینے پہلے مریض کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مریض اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ہارٹ اٹیک کی جو خاموش علامات ہیں، جن کی طرف عموماً مریض توجہ نہیں دیتے، ان میں تھکاوٹ، مریض بغیر کسی وجہ کے، بغیر کام کے ہر وقت تھکا رہنا، صبح اٹھنا تو جسم میں تھکاوٹ، اس کے پیٹ میں درد، اس کے بائیں بازو اور سینے میں درد، سر کا چکرانا، جبڑے یا گلے میں تکلیف ہونا، کھانسی جو رکنے کا نام نہ لے، ہاتھ پیر اور ٹخنوں میں سوجن ہو جانا، نیند کا نہ آنا، ساری رات کروٹیں بدلتے رہنا، سانس میں رکاوٹ اور سانس میں تنگی ہو جانا، بالوں کا تیزی سے گرنا شروع ہو جانا، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا، اور بہت زیادہ پسینہ آنا، ٹھنڈی تریلیاں آنا، سینے میں درد اور جلن ہونا، گھبراہٹ محسوس ہونا، یہ ساری کی ساری علامات ہارٹ اٹیک کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات ہارٹ اٹیک ہی کی طرف ہوں، لیکن جب اس طرح کی علامات بنے تو ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہارٹ اٹیک کی جو وجوہات بنتی ہیں، ان میں زیادہ وجہ ہائی بلڈ پریشر کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے، لیکن یہی ہائی بلڈ پریشر جب مسلسل رہتا ہے، گردوں کو بھی فیل کر دیتا ہے، اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، اور مختلف جگہ سے کوئی وین پھٹ سکتی ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی، بہت زیادہ گوشت خوری کرنا، اور بالخصوص سری پائے کثرت کے ساتھ کھانا، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی، جس مریض کی فیملی میں کوئی ایسی ہسٹری ہو کہ اس کے پیرنٹس میں سے یا کوئی اور اس طرح ہارٹ اٹیک سے فوت ہوا ہو، تو ان کو بالخصوص چوکنا رہنا چاہیے۔ ذہنی اور اعصابی تناؤ، اور وہ چھوٹے بچے کے پیدائشی طور پر جن کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں اور ان کے خون کی نالیاں صحیح طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکتی، انہیں بھی ہر وقت ہارٹ اٹیک کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ نیند ضرور لینی چاہیے۔ عموماً ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنے کام کاج میں، بزنس میں اور دیگر ذمہ داریوں میں، کہ نیند کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کم از کم 8 گھنٹے پرسکون نیند لینی چاہیے۔ اور آج کل ہم ذہنی طور پر زیادہ فعال اور متحرک رہتے ہیں، اور جسمانی طور پر ہماری سرگرمیاں ختم ہو گئی ہیں۔ سارا دن بیٹھ کے کام کرنا، اٹھنا، گاڑی میں بیٹھنا، اور دفتر بھی گاڑی پہ جا کے اترنا یا موٹر سائیکل کا استعمال کرنا، پیدل چلنا تو چھوڑ ہی دیا ہے۔ جسمانی سرگرمیاں، کوئی نہ کوئی گیم، ایکسرسائز، ورزش، یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ چھوٹے موٹے قریب آنے جانے کے لیے کبھی موٹر سائیکل یا گاڑی کا استعمال نہ کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، کوئی نہ کوئی گیم ضرور کھیلیں، اور کوشش کریں کہ 15 سے 20 منٹ ہی صحیح، لیکن روزانہ ورزش کریں۔ رات کا کھانا جلدی کھائیں۔ رات کو جو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں، یہ بھی ہارٹ اٹیک کا ایک سبب ہے۔ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کو بالکل چھوڑ دیں۔ اپنا کم از کم 1 سال بعد اپنا سالانہ چیک اپ وہ ضرور کرواتے رہیں۔
मुरगन ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी से खैरबाद कह दें, क्योंकि ये वक्ती तौर पर ज़ुबान का टेस्ट ज़रूर हैं, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों को आपके जिस्म के अंदर लेकर आती हैं। हजामा ज़रूर करवाएं। हजामा जहाँ सुन्नत रसूल है, वहाँ ये ब्लड से क्लाटिंग ख़त्म करने का सबसे मौसर और जल्द ज़रिया है। जब आप हजामा करवाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है और खून के अंदर कहीं भी नालियों में कोई क्लाटिंग नहीं रहती, कोई रुकावट नहीं रहती। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि ये दिल का मामला है ना। वैसे तो सारा जिस्म ही अल्लाह का है, लेकिन दिल के बारे में तो बिलखुसूस फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का इत्मीनान और दिलों का सुकून वो अल्लाह की याद और अल्लाह के ज़िक्र में ही पोशीदा है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरफ इशारा फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरा जिस्म सही है, और अगर वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ गया। यकीनन हम इसको रूहानी तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर दिल सेहतमंद है और दिल की शरियानें और वरीदें, उनमें खून का बहाव बिल्कुल ठीक और दुरुस्त है, खून की नालियों में कोई रुकावट नहीं है और खून के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंसान तंदुरुस्त और सेहतमंद है। 95% बीमारियाँ तो खून के बिगाड़ से और ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आने से और दिल के मुख्तलिफ अमराज से ही पैदा होती हैं। इसलिए अल्लाह का ज़िक्र वो हमारे दिलों को सेहत भी बख्शता है, शफा भी बख्शता है, इत्मीनान और सुकून भी बख्शता है। अगर खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो कि अचानक आपके करीब किसी मरीज़ को हार्ट अटैक हो जाए, तो उस शक्ल में ये इमरजेंसी की इंतहाई शक्ल है। अब इसमें आप कोई इलाज नहीं कर सकते, यहाँ कोई टोटका और कोई देसी इलाज या कोई कुछ नहीं हो सकता। इसका पहला हल और फौरी हल यही है कि जितनी जल्दी हो सके मरीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों के पास ऐसा इंजेक्शन मौजूद होता है जो शरियानों में रुकावट को दूर कर देता है, उससे मरीज़ को फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाता है। आप अपने घर में भी डिस्प्रिन या एंजीसाइड टैबलेट रख सकते हैं। डिस्प्रिन थोड़ी सी चबा के उसकी ज़ुबान मरीज़ की ज़ुबान के नीचे रख दें, या एंजीसाइड गोली उसकी ज़ुबान के नीचे रख दें, तो थोड़ा सा उसे रिलीफ मिल सकता है। उसके सीने पर मुसलसल मसाज करें और उसके सीने को दबाते रहें और ये देखें कि उसके सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि मरीज़ बेहोश हो जाता है, और जब बेहोश होता है तो उस वक़्त फिर मरीज़ की डेथ वो बेहोशी में सांस के रुकने से हो जाती है। कई दफ़ा उसकी ज़ुबान उसके बिल्कुल गले के आगे जाकर अटक जाती है और वो ना गले से सांस ले सकता है। आप मरीज़ के मुंह में उंगली डालकर उसकी ज़ुबान को गले से अलग करें, और अगर सांस रुक रहा है तो अपना मुंह मरीज़ के मुंह के ऊपर रखकर अपना सांस ज़ोर से उसके फेफड़ों में फूंकें, ताकि उसका तनफ्फुस और सांस बहाल हो सके। और जो प्रेशर है इसका ब्लड प्रेशर, उसको नीचे की तरफ जो है वो मुंतकिल करें, यानी मरीज़ का सर से तकिया वगैरह खींच दें, उसके पाँव को ऊपर रखें और सर को नीचा रखें, और फौरी तौर पर आप मरीज़ को हॉस्पिटल मुंतकिल करें ताकि उसको इस इमरजेंसी से निकाला जाए। और जब मरीज़ इमरजेंसी से निकल आए तो उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो तिब के नुस्खा जात हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से इतने कामयाब हैं कि अगर ये आप इस्तेमाल करें तो कभी हार्ट अटैक की नौबत ही ना आए, कभी इस इमरजेंसी में जाने की नौबत ही ना आए। जो ही मरीज़ संभले आप ये नुस्खा जात शुरू करा दें, इंशाअल्लाह ताला उसे दिल के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे ना स्टड डलवाने पड़ेंगे, ना बाईपास करवाना पड़ेगा, ना ही उसे कोई और ज़रूरत है। इसमें जो चंद बुनियादी नुस्खे हैं दिल के वाल्व खोलने के लिए और दिल के दर्द के लिए, और वो मैं पिछली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। आज मैं अपने मतब का एक और शाहकार नुस्खा जो हम अक्सीर कल्ब के नाम से बनाते हैं, और ये हमारे बुज़ुर्गों के दौर से चला आ रहा है, बड़ा पुराना नुस्खा है हमारे पास। यानी जब मैंने तिब शुरू की थी 94 में, तब से ये मुझे बुज़ुर्गों की तरफ से ये नुस्खा मिल गया था, और तब से मैं ये अपने क्लिनिक पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अल्लाह के फजलो करम से ये दिल के ऐसे अमराज में जिसमें हार्ट अटैक का ख़तरा हो, ये अगर मरीज़ इस्तेमाल करे तो उसके वाल्व भी खुल जाते हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा भी टल जाता है। वीडियो को
तवालत से बचाने के लिए मैं फ़ौरी तौर पर ये नुस्खा आपकी खिदमत में रखता हूँ, आप इसको नोट कर लें। इसमें सबसे पहले आपने लेने हैं तबाशीर नकरा, ये 5 तोला, इलायची खुर्द 5 तोला, जहर मोरा खताई, ये शायद मेरे नज़दीक तिब में दिल की सबसे बड़ी दवाई है। जहर मोरा खताई ये 5 तोला, नारियल दरियाई, इसको नारजियल दरियाई भी कहते हैं और नारियल दरियाई भी कहते हैं, ये नारियल की तरह होता है लेकिन ये समंदर में होता है। कशनीज़ खुश्क 5 तोला और संदल सफ़ेद 5 तोला, ये सारी चीज़ें 5 तोला ले लें। और इसमें 3 तोला चांदी के वर्क, वो आपने कूट के बाद में शामिल करने। और इसमें आपने 3 कुश्ते मिलाने हैं, कुश्ता सदफ़, कुश्ता मरजान और कुश्ता अकीक। बाज़ दफ़ा कुश्तों का नाम सुन के जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं परेशान हो जाते हैं, वो समझते हैं कि कीमों ने ऐसे कुश्ते बनाए होते हैं जो जानलेवा होते हैं। कुश्तों में मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाए जाते हैं। कुछ कुश्ते हैं जो जहरों से बनते हैं, वो वाक़तन उनमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, कुश्ता कच्चा ना रह जाए, कुछ में कोई कमी ना रह जाए, और अक्सर अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो जानलेवा होते हैं। लेकिन कुछ कुश्ते हैं वो आम चीज़ों से बनते हैं, बिल्कुल आम चीज़ें। ये जो मैंने आपको चीज़ें बनाई हैं, मरजान ये एक समंदरी पत्थर है, इसी तरह सदफ़, ये सदफ़ जो है वो एक आम सी वो कोडी जिसके साथ वो खेलते भी हैं वो है। और कुश्ता हकीक ये भी, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, इनमें कोई ख़तरा नहीं है। तो कुश्ता सिर्फ उस चीज़ को कहते हैं जिसको बहुत ज़्यादा बारीक कर दिया जाता है, तो ये आप इसमें शामिल कर लें। उसके बाद ये आपके पास एक सफ़ूफ बन जाएगा। इस सफ़ूफ को आपने रोज़ाना चाय वाला जो आधा चम्मच है, ये सुबह शाम अरग गौज़बान के साथ लेने, इसका आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। और जिन मरीज़ों को हार्ट अटैक हो चुका है, अगर वो इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनका एक सेहतमंद और तंदुरुस्त दिल इंशाअल्लाह ताला वो हमेशा रहेगा, कोई परेशानी नहीं बनेगी। होम्योपैथिक में जो इसके लिए नुस्खा इस्तेमाल किया जाता है उसमें 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 कैरेटेगस, इसका आपने मदर टेंचर लेना है। इसी तरह दूसरी चीज़ है कैकेटस, ये भी होमी मेडिसन है, इसका भी मदर टेंचर लेना है। तीसरी मेडिसन है डिजिटेलिस, ये भी आपने मदर टेंचर लेना है। और चौथी मेडिसन है एकोनाइट, इसका मदर टेंचर नहीं लेना बल्कि ये 30 पोटेंसी में लेनी है, 30 ताकत में। ये तीनों मदर टेंचर और ये 30 ताकत ये मिक्स कर लें, इसके ड्रॉप बना के रख लें। और ये ड्रॉप्स जो हैं ये आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 दफ़ा आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से अगर आप इन हदायत पर भी अमल करेंगे जो मैंने बताई हैं और इन नुस्खाजात को भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी दिल का मसला नहीं बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुकम्मल शफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।